स्पीकर कौमी असेंबली ने मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इससे पहले भी 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। मजमूई तौर पर पीटीआई के 70 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रूस के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। पाकिस्तान को तवील मुद्दत बुनियाद पर तेल और गैस की फराहमी पर तबादला ख्याल। रूस के सदर का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में रूस का अहम शराकतदार करार दिया। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए भरपूर दिलचस्पी का अयादा। который Пакистан проявил в эти непростые времена испытаний, действительно заслуживает быть примером для многих. We also appreciate the international community for helping the affected communities of Pakistan. However, much more is needed to be done for rehabilitation of the people. Мы выражаем большую благодарность тем, кто помог пострадавшим от наводнений в Пакистане, однако еще предстоит очень много сделать для восстановления того, что было разрушено и нанесенного ущерба. Excellency, I take this opportunity to express my gratitude to the Russian government for agreeing to suspend debt service for Pakistan during this critical time. Господин министр, я хочу выразить благодарность от лица Пакистана за согласие помочь в обслуживании государственного долга Пакистана. In these last few days, subjects of mutual interest have been discussed, ranging from train transportation, rail transportation, food security, aviation, education, oil and gas, natural resources, finance, opening up of financial arrangements between the two countries, and many other subjects. На протяжении последних нескольких дней обсуждался действительно широкий круг вопросов, будь то железнодорожный транспорт, вопросы финансов, образования и многие другие сферы. A few agreements of mutual cooperation will be signed, and few of them are in the pipeline. And we are very hopeful that follow-up is going to be the key factor of implementation of these projects. Будет подписано несколько соглашений о взаимопонимании, и также ведется работа еще над рядом соглашений. The 8th IGC is going to lay the foundation of a new relationship between the Russian Federation and the Islamic Republic of Pakistan in the sector of economics, in the sector of trade, in the sector of technology, education, and business-to-business transactions. Восьмая сессия МПК заложит фундамент новых отношений между Пакистаном и Россией в части экономики, торговых отношений и отношений между частным бизнесом. And in the field of energy, there are going to be some significant announcement through the joint press release, which will be in the knowledge of all participants and the entire country. И в части энергетики во время совместного пресс-релиза будут сделаны действительно крупные анонсы, которые затронут обе страны. Excellency, I thank you and your team to have visited Pakistan in this critical time, and hope when you go back from Pakistan, you will go back with a renewed intention of doing business, trade with Pakistan. Господин министр, я благодарю вас за то, что вы посетили Пакистан в этот период. Я надеюсь, что вы вернетесь с новым желанием, новой мотивацией вести с нами дела. Thank you. Благодарю. वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के अख्तामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस तकरीब में रूसी वज़ीर तवानाई
निकोलाई शिलगिनोफ भी मौजूद हैं। दो तरफा तिजारत के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान और रूस बैनुल हुकूमती ताल्लुकात के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इस कमीशन के ज़रिए एहतमाम आपके दौरे रूस दौरे पाकिस्तान के मशहूर हैं। सरदार रियाज सादी कहते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदे भी किए गए हैं। इन मुआहदों पर अमल दरामद के हवाले से आपका दौरा ये मज़ीद पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, कुछ खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मज़ीद 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। इससे पहले भी 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे। मजमूई तौर पर PTI के 70 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं। नमूद बताइएगा, 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, कुल तादाद 70 हो गई है PTI के अरकान की जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसके बारे में जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसने इन्फॉर्म किया है कि मजीद 35 अरकान असम्बली जो हैं कौमी असम्बली के अरकान उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, जिसमें सबसे जो अहम चीज़ ये है कि इसमें 4 अरकान असम्बली वो भी हैं जो कि ख़वातीन हैं, जो कि मखसूस नशिस्तों पर जो कि उसमें शामिल है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें जो आर्टिकल 64 की बात की गई है जो प्रेस रिलीज जारी की है और उसके जो क्लॉज 1 की बात की है उसके अंदर ये जो इस्तीफे हैं ये इसका जो इफेक्ट होगा वो 11 अप्रैल 2022 से ही होगा। यानी कि जिस तारीख को उन्होंने ये खत जमा करवाए थे, रेजिग्नेशन के सबमिट किए थे, उसी तारीख से ही इन इस्तीफों की मंजूरी दी गई है। कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इन इस्तीफों की मंजूरी दे दी है और जो नेसेसरी एक्शन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको डी नोटिफाई करता है उसके लिए ये सारा जो केस है उसको फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जहां से इनको सीट डी नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। जी नमूद 35 अरकान के इस्तीफे मजीद मंजूर किए गए हैं। कल स्पीकर ने गुफ्तगू की थी, मीडिया से भी तकरीब से खिताब भी है, उन्होंने कहा था कि अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तब भी शोर मचता है और मंजूर कर लिए जाते हैं तब भी शोर मचता है। और ये शोर मचाने वाले वही हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और 11 अप्रैल के बाद से किसी भी इजलास में शरीक नहीं हो रहे, कौमी असम्बली में हाजिर भी नहीं हो रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें चंद एक अरकान ऐसे हैं जिनके अभी भी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, जिनमें से जैसे आपको याद होगा कि 6 अरकान ऐसे थे कि जिन्होंने स्पीकर को फोन करके कहा था कि हम इस्तीफा देना नहीं चाहते, तो वो अरकान इसमें शामिल नहीं है। जबकि 2 अरकान असेंबली ऐसे थे जिन्होंने जो कि असेंबली इजलास में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने असेंबली के जो रोल है जिसको हाजिरी रोल कहते हैं उस पे आके साइन किए थे, लेकिन वो इजलास में नहीं आए थे। और जबकि 2 अरकान ने इस हवाले से जो पहले डिजाइन जमा हुए थे इस हवाले से उन्होंने कोर्ट से रजू किया था। लेकिन स्पीकर ने जब लास्ट टाइम भी यही बात की, जब इनकी तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा वफ्द से जब मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि जिन अरकान ने मुकम्मल तौर पर फैसला किया है इस्तीफा देने का, जिनके बारे में मुझे कंफर्म है, उसको ही सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। और उसके लिए जरूरी ये है कि जो इस्तीफा है उसको कंफर्म किया जाए कि उस शख्स ने किसी दबाव के बगैर दिया है। उन्होंने कहा था कि मुझे टीवी के जरिए या मुझे किसी भी दूसरे जरिए से अगर पता चल जाता है कि ये किसी दबाव के बगैर इस्तीफा दे रहे हैं तो वो इस्तीफा यकीन तौर पर मंजूर किया जाएगा। लेकिन किसी एक के कहने पर या किसी एक के जो खासतौर पर कि इकट्ठे जो जिसको कहेंगे बल्क में जमा कराने की सूरत में इस्तीफा मंजूर करना मुश्किल होता है। जी बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम, आप हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में रूस का अहम शराकतदार करार दिया है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि PTI की नाअहल हुकूमत के बायस ML1 मनसूबे की कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिब वतन मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम और इंतशार की जानिब नहीं धकेल सकता। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने पार्लिमान की तौहीन की। PTI के 4 साल दौरे हुकूमत में कौमी नौयत का एक भी मनसूबा शुरू नहीं किया गया। सेनेट का इजलास सोमवार की शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया और आलम इस्लाम में रूस का अहम शराकतदार करार देते हुए ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में अपनी भरपूर दिलचस्पी का अयादा किया है।
یہ خصوصی پیغام روس کے وزیر توانائی نکولے شلگنوف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کے دوران یہ پہنچایا۔ ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے کی اہمیت پر اتفاق، جبکہ روس سے پاکستان کو طویل المدت بنیادوں پر تیل اور گیس کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے روسی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ستمبر 2022 میں سمرقند میں ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس موقع پر پاکستان اور روس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی معاملات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور روس نے توانائی، تیل اور گیس کی تلاش، سائنس اور ٹیکنالوجی اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس اور بزنس فورم کی تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے تجارت، اقتصادی امور، سائنس اور تکنیکی شعبوں میں تعاون کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، جن میں دونوں ملکوں کے نمائندوں نے توانائی، تیل و گیس کی تلاش، زراعت، مالیات، تجارت، سرمایہ کاری، کسٹم، صنعت، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، مواصلات، پوسٹل سروسز اور ریلوے کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا اور کئی شعبوں میں ورکنگ گروپس قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ روس پاکستان کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور بہت سارے پروگرام ہیں جس پر ہم جوائنٹلی کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات ہمارے ڈیولپ ہونا چاہیے مزید۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو اویل کر لیا تو رشیا کی ٹریڈ ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ جو بہت کم ہے، کچھ ملین ڈالرز کی ہیں، وہ بڑھ کے ہم ان کو کئی بلین ڈالرز کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں۔ We think that there is a big potential for cooperation in terms of researches for oil and gas and critical minerals. And I have very positive ideas and expectations from the results of these meetings and discussions. پاکستان روس بزنس فورم کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوا، جس میں پاکستان اور روس کے کاروباری افراد نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ We are ready to often to cooperate with Pakistani companies. We think is very important is that we would like Pakistani companies to become part of our technological framework. انرجی سیکٹر کے ریفرنس سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے ڈفرینٹ R&D پروجیکٹس پہ، ریسرچ پروجیکٹس پہ۔ جو ریسرچ پروجیکٹ ہم رشینس کے ساتھ پلان کر رہے ہیں فیوچر کے لیے، جس کا ہم نے پروپوزل دیا ہے، اس سے پاکستان میں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن انہینس ہوگا۔ ہائر ایجوکیشن، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جو کوآپریشن ہونا ہے دونوں ملکوں کا، اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں۔ ان کی طرف سے یہ ہمیں آگاہ کیا گیا کہ انہوں نے ہائر ایجوکیشن پہ اب اسٹوڈنٹس کے لیے 50 کے لگ بھگ اسکالرشپس رکھ لیے ہیں، جو پہلے ذرا کم تھی تعداد۔ روسی وفد کے ارکان نے کہا کہ روس اور پاکستان ایک دوسرے کو بہت سی مصنوعات درآمد اور برآمد کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سرمایہ کاروں نے کہا کہ روس ایک بڑی مارکیٹ ہے جس میں پاکستان داخل ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان اور روس کے بین الحکومتی کمیشن کے کامیاب مذاکرات سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون فروغ پائے گا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ روس کے وزیر توانائی نکولائے شلگنوف نے کہا ہے کہ جامع حکمت عملی کے تحت پاکستان کے ساتھ تیل اور گیس سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے روس کے وزیر توانائی نے کہا کہ روس اور پاکستان کے تعلقات باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ روس کے وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان اور روس نے مشکل حالات میں تعلقات کو فروغ دیا۔ عوام کی سطح پر روابط کو فروغ دینے سے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ روسی وزیر توانائی نے کہا کہ تاپی گیس منصوبے کا حصہ نہیں، تاہم شمولیت پر غور کیا جا سکتا ہے۔ This meeting was very important, the meeting between our heads of state. They have discussed gas projects, the current pending project, the Pakistan Stream,
as well as finding gas sources. They have discussed gas transit through the countries of Central Asia, from Russia through Kazakhstan, through Uzbekistan and Afghanistan to Pakistan, or an alternative route through Iran. We continue to discuss this issue, and we hope that at the 8th meeting of Intergovernmental Commission, we will be able to resolve most of them. The two heads of state also discussed other bilateral issues apart from energy, for example, diversifying trade, and as I have already said, these negotiations were indeed important. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से खुद को हम आहंग करना होगा। नई टेक्नोलॉजीज को अपनाकर पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी है कि मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक बर वक्त फैसले किए जाए। पीर मेहर अली शाह बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के शोबे में जिस तेज़ी से तरक्की हो रही है, इसी तर्ज पर ज़राई पैदावार में भी इजाफा जारी है। पाकिस्तान में भी हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना होगा। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, उससे अगर हम अवेयर नहीं रहते तो नेदरलैंड्स सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर वाज अबंडेंट इन वाटर, अब इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, बट विद इन 8 and 9 years उस मुल्क ने अपने आप को एक नए कैफियत के लिए तैयार कर लिया। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्ट मौजूद था। चाइना पर यील्ड एकर बहुत सारी चीज़ों में, कॉटन वगैरह में, सब चीज़ों में आपसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया आपसे ज़्यादा, अमेरिका आपसे ज़्यादा। तो जब आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते तो हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है ना। ये जो टाइम लैग है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नीडेड, ये सबसे अहम टाइम लैग है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 4 साल में इमरान खान ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है। पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की है, आइंदा भी करेंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली है, पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि अवाम हमारे साबका 4 साल और PTI के 4 साल का मवाजना ज़रूर करें। अल्लाह फजल करम करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। पाकिस्तान मुश्किलों से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल करम से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं। और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैड मैन जो है, मैं मैड मैन कह रहा हूँ, आज जो हशर कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें और फिर ख़ुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के, वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी, और शायद मेरा आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है, और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितम ज़रीफ़ियाँ हुई हैं, जो ज़ालिमाना सलूक किया गया है, उसको बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अवाम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। नाज़ी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI रहनुमाओं के काले करतूत सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को तबाही के दाने पर ला खड़ा किया। PTI की बदउनवानियां अब बेनकाब हो रही हैं। जो इनके काले करतूत सामने आ रहे हैं, अब इमरान खान का जो तोशा खाना में इंतहाई जो है वो घटिया किरदार सामने आया है, जो इसने वो एक प्रॉपर्टी टाइकून से कौमी खजाने को 50 अरब का टीका लगवा के 5 अरब रुपया कमाया है। तो ये केसेस जब इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, राइप अप हो रहे हैं,
तो फिर उसके ऊपर जो है वो अगर ये लोगों की गिरफ्तारी बनती है तो हजारों को गिरफ्तार करना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। उस सिलसिले में आज जो है वो बुनियादी मामलात के ऊपर मोहतरम कायद से जो है वो गाइडेंस ली है। एक सवाल के जवाब में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आइंदा आम इंतखाबात की मुहिम के लिए मुल्क वापस आएंगे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, वो किसी को भी रहनुमाई के लिए तलब कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द मुस्लिम लीग नून के कारकुन अपने कायद को अपने साथ पाएंगे। हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। मैंने दिसंबर 2021 को कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। आज अगर हम ये नहीं कह रहे और मेरे जैसा शख्स नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ तो फौरी पाकिस्तान आ रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली ने निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान की जानिब से जारी एलानिये में बताया गया है कि पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान शामिल हैं। कमेटी में तहरीक इंसाफ और काफली की जानिब से राजा बिशारत, मियां असलम इकबाल और हाशिम जमा बख्त शामिल हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और सैयद हसन मुर्तज़ा के नाम शामिल हैं। कमेटी 3 दिन में परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज की जानिब से भेजे गए नामों में से एक का इंतखाब करेगी। ताहम पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक न होने पर निगरान वज़ीर आला की तैनाती का मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज पंजाब असेंबली के कमेटी रूम में होगा। कमेटी के रुकन मलिक अहमद खान ने कहा है कि वज़ीर आला और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने पहले जो नाम भिजवाए थे वही रहेंगे, मज़ीद नए नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशस्तें लेने वाली 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान बराह रास्त राब्ता हुआ है। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया। तफसील सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट में। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के बाद सियासी तलखी को कम करने और बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल निकालने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सईद गनी, इम्तियाज शेख और नजमी आलम ने जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए सईद गनी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर कराची की शहरियों की खिदमत करें और हमने खुले दिल से उनके मैंडेट को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने यकीन दहानी कराई है कि जिस मसले पर सिंध हुकूमत का किरदार बनता है वो हम हल करेंगे और जिन मसाइल पर जमात इस्लामी ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है इस पर हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें और ये इस शहर के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि 2 मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ मिलाकर आगे चलें। पूछा कि साहब ये तो हमें मालूम है कि आप तकरीर करना कोई आपके लिए खुशगवार तजुर्बा नहीं और हर तकरीर जो है वो एक आपके लिए भी डरावना ख्वाब होती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके लिए वो डरावना तजुर्बा होती है। तो ये हमें नहीं समझ आता कि जब आप इतनी अजियत से गुज़रते हैं तो क्यों आप हर उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको तकरीर के लिए दिया जाता है। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेल इट इज़ द प्लेजर ऑफ लिसनिंग टू द इंट्रोडक्शंस। तो मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी तवानाई मुझे मिली है एक बहुत जेनरस इंट्रोडक्शन से। लेकिन मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि जो आपने इदारा बनाया है और जो इस इदारे के अंदर मैंने काम देखा है, इसने बहुत उम्मीद दी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि आज हम जिस अहद के दरवाज़े पे खड़े हैं इसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है और हमारे जैसे ममालिक एक दोराहे पर हैं कि अगर हमने इस 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की लहर पर जस्त लगा के
सवारी ना की, जैसे कि गालिबन शेक्सपियर ने कहा था कि हर किसी की रास्ते में एक ऐसी लहर आती है कि वो टाइड अगर वो पकड़ लें तो वो उसे कामयाबी और मंजिल मुराद पे ले जाती है, लेकिन अगर वो लहर मिस कर दी जाए तो फिर वो शख्स या वो मुआशरा या वो ग्रोह बहुत पीछे रह जाता है। तो इसी तरह हमने पहली जो 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की लहरें थीं उन्हें बहैसियत कौम और बहैसियत उम्मत मिस किया। तक 18वीं सदी में जब पहली स्टीम इंजन और स्टीम पावर के ज़रिए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उस वक्त वो बड़ी बड़ी एम्पायर्स, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर थी, चाहे वो मुग़ल एम्पायर थी, वो अपने महल बनाने में लगे हुए थे। लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में उस वक्त स्टीम पावर को मास्टर किया जा रहा था और उसने एक पैराडाइम शिफ्ट किया और वो बड़ी बड़ी एम्पायर्स जो एग्रीकल्चर इकॉनमी के ज़रिए ताकत हासिल करती थीं, जब स्टीम इंजन और स्टीम पावर से एक इंडस्ट्रियल बेस बनी तो वो सब पीछे रह गईं। फिर उससे अगली सदी में जब इलेक्ट्रिसिटी ने और मैस प्रोडक्शन ने सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा की तो उसका भी फ़ायदा हम नहीं उठा सके। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने उसका फ़ायदा उठाया और फिर मच लेटर जो ईस्ट एशियन इकॉनमीज़ हैं उन्होंने उसको कैच किया और वो भी आगे निकल गए। फिर 20वीं सदी में उसके इख्तिताम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के ज़रिए एक थर्ड रेवोल्यूशन आई जिसने के तमाम दुनिया के पैदावारी निज़ाम में नए पैराडाइम्स लाए और वो ममालिक जिन्होंने उस पावर को हार्नेस किया वो एक और जस्त के साथ आगे निकल गए। और अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसमें जो ड्राइवर्स ऑफ प्रोग्रेस हैं वो यकसर बदल गए हैं। इसमें कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मैन मेड मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो ड्राइवर्स हैं कि जो आने वाले अहद के लीवर्स ऑफ प्रोग्रेस हैं। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मुस्तकबिल की जंगें मैदान जंग में नहीं लड़ी जा रही, मुस्तकबिल की जंगें क्लास रूम्स और लेबॉरेटरीज़ के अंदर लड़ी जा रही हैं। जिस कौम के क्लास रूम और लेबॉरेटरी मजबूत होंगे उस कौम का मुस्तकबिल महफूज होगा, और जिस कौम के क्लास रूम और लेबॉरेटरियाँ बदहाल होंगे उस कौम का मुस्तकबिल तारीक होगा। तो आज जो लेबॉरेटरीज़ में मैंने काम देखा है उससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। बायोटेक्नोलॉजी एक वो इमर्जिंग फील्ड है कि जो आने वाले वक्त में उसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी जैसे 1970 और 80 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ को रीडिफ़ाइन किया था। बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए न सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर रेवोल्यूशन आएगा बल्कि एग्रीकल्चर के अंदर, इकॉनमी के दूसरे शोबों में, इंडस्ट्री में, हर चीज़ में नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और पुराने जो मॉडल्स हैं वो तब्दील और रिप्लेस होंगे। इस वक्त भी दुनिया में तकरीबन 800 मिलियन से ज़्यादा, 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद हर रोज़ भूखे सोते हैं क्योंकि उनके लिए अनाज दस्तयाब नहीं है। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा अमवात होती हैं भूख की वजह से, जिनमें से आधे बच्चे हैं। और ये जो दुनिया में आबादी का दबाव है और खुराक की कमी है, अगर इसको किसी भी तरह से हम पूरा कर सकते हैं तो उसका एक ही ज़रिया है, वो बायोटेक्नोलॉजी है कि जिसके ज़रिए हम रिसर्च करके एग्रीकल्चर क्रॉप्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे जैसे मुल्क को है कि जो क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइन के ऊपर हम इतने वल्नरेबल मुल्क हैं जिसके नतीजे में
जैसे आपने देखा कि सिंध के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई, बलूचिस्तान में तबाही हुई, बाकी भी सूबों में कम हुई, लेकिन ये दो सूबों में तो इतनी ज़्यादा तबाही हुई कि उस सैलाब ने ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमने दुनिया से हम आहंग होकर तरक्की में हिस्सा ना लिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से ऑयल एंड गैस के शोबे की बड़ी कंपनी बीबी एनर्जी ग्रुप के सरबराह की सरबराही में वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो दे रही है। हुकूमत कंपनी को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। ग्रुप के सरबराह ने तवानाई के शोबे में मौजूदा सरमायाकारी के बारे में आगाह किया और पाकिस्तान को सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की फराहमी के लिए स्ट्रेटजिक कारोबारी ताल्लुकात उस्तवार करने में दिलचस्पी जाहिर की। स्विट्ज़रलैंड में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एशिया पैसिफिक के लिए गूगल के सदर स्कॉट बेमोंट के दरमियान मुलाकात हुई। आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, तकनीकी मुआवनत और शदीद मौसमों की पेशगोई में महारत में इजाफे पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि गूगल एशिया पैसिफिक के सदर से मुलाकात में सरकारी और निजी शोबे की शराकतदारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। गुजरात का कसाब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार है। मारूफ बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने भी मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दे दिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मुनक़िद होने से चंद दिन पहले डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसमें मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया गया। डॉक्यूमेंट्री वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान की तायद है कि मोदी गुजरात का कसाब है। BBC ने भारत में 2002 के गुजरात फसादात पर एक खुसूसी रिपोर्ट नशर की। जॉन डोनेसन ने रिपोर्ट किया है कि 2002 में गुजरात में कम से कम 1000 लोग मारे गए। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा की एक रिपोर्ट में मोदी और इसके इत्तेहादियों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है। विश्व हिंदू परिषद रियासती हुकूमत की तरफ से इस्तिस्ना के बगैर नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इस फिल्म में यह भी बताया गया है कि मोदी ने पुलिस को तशद्दुद को न रोकने की हिदायत की थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है कि भारत कश्मीरियों को अपना हक़ खुद इरादियत मांगने पर कत्ल कर रहा है। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिनके जरिए गाँव कदर, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा और कत्ल के दीगर दिलदोज वाक़यात की शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टर्स में शोहदा के मिशन को हर कीमत पर इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का अदा किया गया। फस्ताई मोदी हुकूमत ने मखबूसा जम्मू और कश्मीर के तमाम अजला में जारी बेदखली मुहिम को तेज कर दिया है। काबिज हुक्काम नाम नहाद तजावुज़ात के खात्मे के नाम पर कश्मीरियों की इराज़ी छीन रहे हैं। मकामी लोगों से अब तक हज़ारों कनाल इराज़ी छीनी जा चुकी है। लोगों ने जम्मू और दीगर इलाकों में काबिज इंतज़ामिया की तरफ से बेदखली मुहिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने काबिज इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ज़मीनों से कश्मीरियों की बेदखली के हुक्म को मनसूख करे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कश्मीर में 2019 के बाद बहुत से कवानीन लाए गए हैं जो लोगों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मेजर जनरल रिटायर्ड सरदार मोहम्मद अनवर खान रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। सरदार मोहम्मद अनवर 9 मई 1945 को आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ में पैदा हुए। वो पाक फ़ौज पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियों पर फाइज रहे। उन्होंने पाक फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद 2001 से 2006 तक आज़ाद कश्मीर के सदर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सरदार मोहम्मद अनवर खान की वफ़ात पर आज रियासत भर में आम तातील का ऐलान किया है। सफाक इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीन के 79 शहरियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मगरबी किनारे के शहर जनीन में एक कार्रवाई के दौरान इसराइली फ़ौजियों ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि सहूनी फोर्सेस ने जनीन में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर शदीद फायरिंग की जिसके बायस जवाद फरीद और मोहम्मद बासिम शहीद हो गए।
नाज़रीन, रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेन हमारे मुतालबात मान लेता है तो जंग बंदी मुमकिन हो सकती है। मॉस्को में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस के खिलाफ हठधर्मी ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। अगर कीव हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेता है तो इसका बराह रास्त फ़ायदा यूक्रेनी अवाम को होगा। अमरीका और मगरब की जानिब से यूक्रेन को असलहे की फराहमी से महाज़ाराई बढ़ेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इक़दाम यूरोप के लिए भी खतरे की घंटी बन सकता है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने मगरबी ममालिक और दीगर इत्तेहादियों पर जोर दिया है कि वो कीव को असलहा फराहमी के अमल को मज़ीद तेज़ करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बरवक्त असलहे की फराहमी से यूक्रेन समेत यूरोप की सलामती को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। आर्मेनिया में एक फौजी बैरक में आग लगने के नतीजे में 15 फौजी हलाक हो गए। आर्मेनिया की वजारत दफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़े में 3 फौजी जख्मी भी हुए जिनकी हालत नाजुक है। आग आज़द गांव में फौज के एक इंजीनियर्स और स्नाइपर यूनिट में लगी। हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सिंध की गरीब और पिसी हुई अवाम को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए बड़ा इक़दाम। आला अदलिया ने लीगल सालिसी कमेटी का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। लीगल एड फोरम के तहत आवाम को मुफ्त और फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा। मज़ीद तफसील बताएंगे उमरकोट से अमीन डिप्लाई। सिंध के बेपहुंच और बेसहारा शहरियों के लिए सस्ते इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए मीडिएटर की हैसियत से लीगल एड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर सेमिनार मुनक़िद हो रहा है, जिस सेमिनार में मुख्तलिफ उमरकोट की स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जुडिशली, बार और उसके साथ साथ पुलिस को भी मदऊ किया गया है। लीगल एड सोसाइटी ने स्लैक के नाम से जो कॉल सेंटर हमारा मौजूद है, वहाँ पर कोई भी अगर हमें कॉल करता है, अपना डिस्प्यूट बताता है, तो हम उसको कोर्ट जाने से पहले बताते हैं कि आप अपना केस मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप कानून भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। हमारे पास पुलिस स्टेशन पे जो मोस्टली केसेस आते हैं वो पेटी इश्यूज होते हैं सिविल नेचर के, जिनको हम एक फॉर्मल मैकेनिज्म के तहत एडीआर के तहत अगर उनको हल करें तो ना सिर्फ पुलिस स्टेशन पे बोझ कम होगा बल्कि कोर्टों पे भी बोझ कम होगा। मीडिएशन एक वाहिद तरीका है जिसके जरिए लोगों को जल्द और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जा सकता है। जो मेरी पास कोर्ट है, मॉडल सिविल अपीलेट कोर्ट, तो मोर देन 40% मेडिएशन से हो गए, तो दिस इज गुड वे। आइन भी सपोर्ट करता है, इसीलिए ऐसे कवानीन बने। आइन सपोर्ट अगर ना करता होता तो ये कवानीन नहीं बनते। बात है सिर्फ आगाही की। इस सेमिनार में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ जज साहिबान और यहाँ के स्टेक होल्डर्स का यही कहना है कि मीडिएटर इंतहाई अहम है इन फरीकों के दरमियान। अगर मीडिएटर मौजूद हो तो यकीनन अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ जल्द से जल्द मिलने की तवक्को है। सिंध हुकूमत की तरफ से साहिली इलाकों में तबाह होने वाली सड़कों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। 70 अरब की लागत से बनने वाली सड़कों से आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात हासिल होंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हालिया बरसात और सैलाब के बाद साहिली इलाकों की जो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई थी, ढेर आबा गई थी, उसका तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर सिंध हुकूमत ने शुरू कराया था। सिंध हुकूमत ने 7 अरब रुपए जारी किए थे, जिसके बाद ये सड़कें जो केटी बंदर, शाह बंदर और बुहारा, गाड़ो, मीरपुर साकरो, घोड़ाबारी की सड़कें थी, उस पर तामीराती काम शुरू हुआ था। 2 महीने के अंदर मुकम्मल हो गया। अब ये सड़कें जो है बिल्कुल तैयार हो गई हैं। गारो से जो रोड थी, उदासी रोड थी, ये खलीफा सदरपुर रोड थी और बाबियो रोड थी, ये बगान की रोड थी, तो उनकी ऐसी ख़राब हालत थी कि जो 10 मिनट का सफ़र होता था उसमें हमें घंटों घंटों लग जाते थे। आज ये इफ्तिताह हो रहा है उदासी रोड का, सदरपुर रोड का, जो खलीफा तक जाता है, लोगों का आसानी से मतलब टाइम कवर हो जाता है, पहुंच जाते। और आज के जो बाबियो रोड का इफ्तिताह भी हो रहा है। पीपल्स पार्टी से और मेरे से जो हो सका है इन लोगों की खिदमत करने के लिए, जब तक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, काम करते रहेंगे। इन लोगों ने हिसाब नहीं किया, क्या हिसाब करना है इन लोगों से। सड़कों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो हुआ है जो कारोबारी हजरात है, जो केटी बंदर से सामान लेके कराची जाते हैं, उसमें सब्जी, मछली, दूसरा सामान है। उसके अलावा सफ़र करने वालों को काफ़ी सहूलियत हुई हैं। लोगों ने जो है बहुत शुक्रिया अदा किया है सिंध हुकूमत का कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में, जब सड़कें बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, उसके तामीराती काम बहुत जल्द मुकम्मल किया है। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा हसन बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कड़ाके की सर्दी ने खून जमा दिया। बालाई इलाकों में ठंड के डेरे हैं। पंजाब के कई अजला में बूंदाबांदी के बाद धुंध छट गई। मरी और गलियात में हल्की बर्फबारी ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। स्कर्दू और अस्तोर का दर्जा हरारत -12 तक गिर गया है। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक। मुल्क भर में बारिशों की दोबारा एंट्री। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। बारिश और बर्फबारी के साथ
बर्फानी हवाओं ने सर्द मौसम को और भी सर्द कर दिया। इस्लामाबाद में मतला अबर आलूद रहने के साथ शाम को हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता रात मलका कोहसार में रुई के गाले गिरे। गलियात और गिरदो नवा में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला चित्राल, वीर, सवात, मालाकंड, बुनीर और शांगला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरसे तो धुंध के बादल छट गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों का ये सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद।